Morning guys. In last lecture we are discussed about the mouth, teeth, esophagus. Now today we will discuss about some part of alimentary canal like stomach and intestine. So start the study of stomach. Stomach. This is the structure of stomach. The stomach is a thick muscular J-shaped structure present between the esophagus and small intestine. This is the structure of stomach. The outer surface of the stomach, the outer part of stomach joined with the esophagus, and the last portion of stomach is joined with the small intestine. The stomach is a thick muscular J-shaped structure. ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन से शेप का होता है. तो J-shaped structure and present between the esophagus and small intestine. The lining of stomach contains so many gastric gland. The gastric gland, these are the gastric gland present in the lining of stomach, inner lining of stomach, and gastric gland secrete gastric juice. The gastric gland secrete gastric juice, and the gastric juice contain mainly three substances like HCl, mucus, and pepsin. HCl provide acidic medium to food and also kills the bacteria present in the food. Mucus also help in the protection of inner lining of stomach. And last one is known as pepsin, which are present in the gastric juice. The pepsin break down the complex protein into simple polypeptide. सो स्टोमक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ से कुछ क्वेश्चन कंपटीशन में बन सकते हैं. वो हो सकता है क्या जे सब स्ट्रक्चर का होता है, उससे क्या करना है. एंड फ्रॉम द स्टमक gastric juice are secreted, and in which gastric juice HCl, mucus and pepsin are present. Now we are talking about the intestine. The intestine is responsible for most of the digestion and absorption of food. ये क्या होता है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. इसकी पोजीशन की अगर बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट जस्ट बिटवीन द स्टमक एंड एनस. ये क्या होता है, स्टमक और एनस के बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है. द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज 7.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है. एंड it is mainly divided into two parts, small intestine and large intestine. This blue line indicate the small intestine and this broader line indicate the large intestine. The small intestine is the largest part, tubular part, which is present just between the esophagus and anus. ये anus के बीच में क्या होता है, पाया जाता है. The small intestine, in small intestine most of the digestion of food take place. यानी कि सबसे ज़्यादा अगर क्या होता है कहीं पे डाइजेशन की एंड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस अगर एलिमेंट्री कैनाल में होती है तो वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ड्यूडेनम इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट्स लेंथ इज 20 to 25 सेंटीमीटर. 20 to 25 सेंटीमीटर. दिस इज द ड्यूडेनम. ये ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट्स है. In duodenum, bile duct and pancreatic duct. Bile duct from the liver and pancreatic duct from the pancreas open. क्या होता है duodenum वाले पार्ट्स में, ये क्या होता है, लीवर से बाइल डक्ट और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है. इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एंजाइम होने के कारण उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, डाइजेशन होता है. बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन क्यों सबसे ज़्यादा होता है. क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन इसलिए ज़्यादा होता है कि इसकी सरफेस एरिया जो होती है क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है. इसकी लेंथ भी 6.25 मीटर लॉन्ग होती है. इसके बावजूद इसमें क्या होते हैं, इसकी इनर लाइनिंग के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं. इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को माइक्रोविलाई और विलाई के नाम से हम इसको जानते हैं. बात करते हैं ड्यूडेनम की, तो ये हो गया. जेजुनम वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, 2.5 मीटर लॉन्ग होता है. बट देयर इज नो केमिकल डाइजेशन बिकॉज देयर इज नो सेक्रेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल एंजाइम.
The last one is known as ileum. It is the longest part of small intestine and it is 3.5 meter long. The total digestion of food in intestine take place in ileum. ये पूरी क्या होती है, अगर डाइजेशन की प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो इलियम तक आकर क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन रहा। एक दो क्वेश्चन और अक्सर आते हैं सामने कि जो इसकी लेंथ होती है, पूरी लेंथ क्या होती है इस इंटेस्टाइन की, वो 7.5 मीटर होती है, जिसमें 6.25 मीटर की लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो क्या होती है लेंथ होती है 1.25 मीटर होती है। तो यहाँ पे कहा गया है इसकी लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6.25 मीटर है, इसके बावजूद इसको स्मॉल बोला जा रहा है, और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.25 मीटर है, फिर भी इसको लार्ज बोला जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लेंथी तो होता है, लेंथ उसकी ज्यादा होती है, बट उसकी डायमीटर क्या होती है, कम होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। देयर इज नो, इट इज द ओनली साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम ड्रग्स। इसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह होती है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह होती है जिसमें केवल वाटर का और कुछ ड्रग्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। And large intestine open into anus. The last part of alimentary canal is known as anus. From undigested food is go outside the body. वो बॉडी से क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अगर बाहर जाता है तो वो क्या होता है, एनस के थ्रू जाता है। तो ये तो इस इंटेस्टाइन की बात हुई। अब बात आती है कि जो पैनक्रियाटिक ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि इंटेस्टिनल वॉल्स जो होती हैं उसमें इंटेस्टिनल एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो क्या होते हैं, कंप्लीट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और क्या नाम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसके अलावा भी क्या होते हैं, इसमें लीवर से जो बाइल जूस आता है वो भी क्या होता है, कुछ एंजाइम्स को रिएक्ट किए होता है। पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस आता है उसमें भी कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसीलिए इंटेस्टाइन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, चाहे वो फूड कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो क्या नाम है, फैट हो। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लीवर को। लीवर क्या होता है, एक क्या होता है, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और लीवर से क्या होता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है। फ्रॉम लीवर बाइल जूस इज सीक्रेटेड एंड द मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज टू प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम टू द फूड। ये फूड को क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज द इमल्सिफिकेशन। ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है बाइल जूस का, वो क्या होता है, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस में हेल्प करना। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? तो इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच लार्जेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ फैट इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। समझ लीजिए ये क्या है, ये फैट है, फैट का लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, और अगर हम इसमें इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस क्या करते हैं, लगाते हैं, तो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा ये फैट के जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है इज ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल फैट मॉलिक्यूल। दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पैनक्रियाज के। पैनक्रियाज इज आल्सो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। इससे क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, while amylase is carbohydrate digestive enzyme जिसको हम पैनक्रियाटिक एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, and lipase is fat digestive enzyme. Trypsin is protein digestive enzyme which break down the complex protein into simple polypeptide, peptone and protease. यानी कि जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन होता है उसको सिंपल पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीएज में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। सो ट्रिप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। एमाइलेज व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज इज आल्सो नोन एज पैनक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, पॉलीस्टार्च या polysaccharide into disaccharide. The amylase is carbohydrate digestive enzyme which break
complex starch into disaccharide, while lipase is fat digestive enzyme which break down complex fat into fatty acid and glycerol. So from the pancreatic juice, trypsin, amylase and lipase, which is the protein digestive enzyme, carbohydrate digestive enzyme and lipase enzyme are secreted, fat digestive enzyme are secreted. आज के चैप्टर में आपको ये खत्म करने की कोशिश की गई है और ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे खत्म होता है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अदरवाइज डाइजेशन में न्यूट्रिशन की जो लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, आज वो यहाँ पे क्या होती है, खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।